Today, I tried to share some information of a rare medicine. Rare medicine, in my view, there is no rare medicine in our materia medica. Every medicine is important medicine, and every medicines have its own uh, quality. But yes, of course, it is very less often used medicine, so that's why I'm saying it a rare medicines. So let's talk. Let's start with our organ of medicine. So what section 210 is saying of psoriatic origin are almost all those diseases that I have above term one-sided, which appears to be more difficult to cure in consequence of this one-sidedness. All their other morbid symptoms disappearing as it were before the signal great prominent symptoms, as a great prominent symptoms. Of this character are what are the termed mental disease. They do not have, however, constitute a class of disease. The condition of disposition and mind is always altered. And in all cases of disease, we are called on to cure the state. The patient's disposition is to be particularly noted along with the totality of the symptoms. If we would trace an accurate picture of the disease in order to be able their form to treat it homeopathically with success. देखिए सेक्शन 210 में वन साइडेड डिजीज के बारे में कहा है, लेकिन ये लाइन जो मैंने रेड लाइन में डाला है उसको हमें बिल्कुल ठीक से समझना चाहिए. फर्दर इसका जो फुटनोट्स है, how often for instance do we not meet with a mild soft disposition in patients who have for years been affected with the most painful disease, so that the physicians feel constrained to esteem and compassionate the sufferer. सवाल यह है कि जब वन साइडेड डिजीज से रिलेटेड केसेस हम लोग के सामने आते हैं तो हम उसको किस तरीके से देखें. हमारा ऑर्गेनन भी वही बात कहता है जो हम माइंड मेथड में इन जनरल यूज कर रहे हैं. लोगों को लगता है कि माइंड टेक्निक को सिर्फ कुछ खास केस में यूज किया जा सकता है. ऐसा भी हो सकता है, लेकिन माइंड टेक्निक को आप लगभग हर एक्यूट एंड क्रॉनिक केस में यूज कर सकते हैं. 210 क्या कहता है कि those who were patient when well often become obstinate, violent, hasty, or even intolerant, or capricious, or impatient, or desponding when ill. जब बीमार होता है तो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग उसके कैरेक्टर होते हैं. Those formerly chaste and modest often frequently become lascivious and shameless. A clear-headed person not infrequently become obese or intellect, while one ordinarily weak-minded become more prudent and thoughtful. आप देख रहे हैं कि उसका माइंड कैसे बदलता है अलग अलग स्टेट में. वही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग स्थिति में वो कभी इम्पेशेंट होता है, कभी इंटॉलरेंट होता है, कभी कैप्रिशियस होता है, शेमलेस हो जाता है. तो ये ऑर्गेनन में भी है कि हम कैसे इस तरह के केसेस को हैंडल करें. एंड ए मैन स्लो टू मेक अप his mind sometimes acquires great presence of mind and quickness of resolve, etc. तो जब हम ऑर्गेनन को ठीक से पढ़ेंगे तो हमें माइंड रूब्रिक को यूज करने के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा. This holds good to such an extent
that the state of the disposition of the patient often chiefly determines the selection of homeopathic remedy as being as decidedly characteristic symptoms which can least of all remain concealed from the accurately observing physician. पेशेंट के इमोशनल स्टेट को आप अगर कंसिडर करेंगे तो आप दवाई तक पहुंच सकते हैं, रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। पेशेंट का जो इमोशनल स्टेट है वही चॉइस ऑफ रेमेडी डिसाइड करता है। तो ये हमारा ऑर्गेनन भी कहता है, जो हमारा गाइडिंग बुक है, वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस को अ, एक डायरेक्शन देने वाला जो बुक है वो भी हमें यही बात कहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम इस बात को समझ लें कि माइंड रूब्रिक पर काम करने वाले लोग कोई एलियन नहीं है, वो कोई अलग सी दुनिया से नहीं आए। हमारे कई ऐसे कोलीग्स हैं जो जनरल प्रैक्टिस में हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों ने क्या माइंड 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 कर रखा है। हमने कहा हमने कुछ भी नहीं कर रखा है, ये सब हमारे ऑर्गेनन में है, बस उसको ठीक से पढ़ने और समझने की जरूरत है। एनहोलेनियम सबसे पहले डॉक्टर एम एल सहगल साहब ने हमें पढ़ाया था। उस समय हम लोग उनके पास जाते थे पढ़ने के लिए, और उसके पहले मैंने एनहोलेनियम या बहुत सारे ऐसे रेयर मेडिसिन के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आज हम एक रेयर मेडिसिन को जब टच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना कॉमन है। बहुत सारे कॉमन केसेस में, बहुत सारे पेशेंट्स में आपको एक रेयर रेमेडी नजर आएगी। अगर आप उसको ठीक से हैंडल करेंगे तो शायद आपको क्योर भी मिलेगा। अब देखिए, एक सिचुएशन है कि एक आदमी अपने आप को भगवान समझता है। इससे रिलेटेड कई सारे रूब्रिक्स, कई सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे आपके रेपर्टरी में। राजन शंकरन के माइंड सेक्शन में उनकी जो सिनर्जी बुक है उसमें, और जो उनका सॉफ्टवेयर है मैक रेपर्टरी, उसमें माइंड, डेल्यूजन, इमेजिनेशन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, गॉड और गॉड इज ही इज। एक आदमी अपने आप को ईश्वर से कम नहीं समझता है। इसमें 7 दवाइयां हैं: कैनेबिस, ग्लोनाइन, एग्निस, एरिडिस, एलएसडी, स्ट्रमोनियम, टेरेंटुला। शंकरन साहब की ही रेपर्टरी में आपको माइंड सेक्शन में मिलेगा डेल्यूजन, इमेजिनेशन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, गॉड, गॉसेस, कम्युनिकेशन विथ, इज, इन। आदमी कहता है कि भगवान से हमारा सीधा कनेक्शन है, हम सीधे भगवान से बात करते हैं। 9 रेमेडी है इसमें, एगैरिकस, बॉसेस। अब ये सब रेयर मेडिसिन है। एलएसडी भी है, मैनिक्यूला भी है, स्ट्रमोनियम भी है, सल्फर भी है, वेरेट्रम भी है। संकरन के ही रेपर्टरी में माइंड सेक्शन में आपको एक रूब्रिक मिलेगा: माइंड, डेल्यूजन, इमेजिनेशन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, गॉड, गॉड इज सीज, वह ईश्वर को देखता है। इसमें भी 7 मेडिसिन है। केंट रेपर्टरी में माइंड सेक्शन में एक रूब्रिक है: डेल्यूजन, गॉड दैट ही इज इन कम्युनिकेशन विथ। ऊपर इसी तरह का एक रूब्रिक आया, स्ट्रमोनियम एंड वेरेट्रम है केंट केंट में। एलन साहब के उसमें डेल्यूजन्स, गॉड थिंक्स ही सीज, सोचता है कि वो ईश्वर को, भगवान को देखा है। तो इस तरह से जब आप माइंड सेक्शन को देखेंगे तो उसमें बहुत विचित्र विचित्र तरह के सिम्टम्स आपको मिलेंगे। अब आइए कुछ पिक्चर्स देखते हैं। एक वीडियो है, इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिए। ये एक, मेरा कोई बायस्ड नहीं है, मैं पहले ही माफी के साथ आप लोगों से शेयर करता हूं कि इसमें से किसी भी चीज को आप अपने तरीके से समझिएगा। उसको ऐसे मत देखिए कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं। आपको मैंने एक दिखाया कि ये एक अवस्था है।
जिस अवस्था में व्यक्ति अपने आप में मस्त है, अगले कुछ पिक्चर देखिए, कई इस तरह के सीन्स आपको मिलेंगे कि एक आदमी नॉर्मल आदमी से अलग दिखता है। उनकी कुछ भी अवस्था हो सकती है, वो कोई रिलीजियस गुरु हो सकते हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, वो कोई भी सोशल चेहरा हो सकता है। वो अपने आप को सामान्य व्यक्ति से अलग दिखाता है, क्योंकि केसेस आपके उसमें कभी भी आ सकते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आप इस तरह की स्थितियां देखते होंगे कि ये कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है, ये सब कुछ एबनॉर्मल है, एक अलग है। सामान्य आदमी ऐसा नहीं करता, वो किसी एक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, फिर वो मुक्त हो जाता है और वो इस तरह की सारी चीजें करता है। आप देखिए। अब एक केस लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। ये केस एक बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी का है, मेरे मेरे पास आया हुआ केस है। इनको सर में दर्द होता था, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का केस था। 7-8 साल से इनकी तकलीफ बनी हुई थी, पेन किलर्स वगैरह लेते रहे। जब जब तकलीफ बढ़ती थी वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते थे, लेकिन ओवरऑल इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर ये केस मेरे पास आया था। 62 ईयर्स के एक अधिकारी हैं। वे अपने समय के बेहद ही चर्चित पुलिस अधिकारी रहे हैं। वे तेज तड़ार अधिकारी रहे, इसलिए अलग अलग समय में सरकार से उनका विवाद भी चलता रहा। इनकी कभी भी किसी सरकार से पटी नहीं, जमी नहीं, और इनका ट्रांसफर अक्सर होता रहता था। तो कहते हैं कि सर मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, किसी अंगूठा छाप नेता से क्यों डरूं, ये उनके लैंग्वेज। आप देख रहे हैं, अब तक जो बात हमने की ऑर्गेनन में, जो हमने 210 एंड 211 सेक्शन को पढ़ा और कुछ पिक्चर्स आपने देखे, तो इनके लैंग्वेज देखिए कि सर मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, किसी अंगूठा छाप नेता से क्यों डरूं, कोई नेता मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करवा देगा। ये उनका इनिशियल स्टेटमेंट था। मेरे पास ये केस ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए आया था। अब मैंने इस पूरे केस को समराइज करके आपके लिए रखा है। उनका स्वभाव कैसा था, अपने आप को स्मार्ट दिखना, वो बहुत वेल वेल ड्रेस्ड थे। उन्होंने जितनी बातें बताई उसके आधार पर मैंने ये पॉइंट्स नोट किया। उनके लिए एक्शन फोटो शूट करना, वो अक्सर उनके रील्स हैं। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बहुत पॉपुलर है। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो प्राइवेसी का मामला है, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हैं। आप उनको कहीं भी सर्च कर सकते हैं, मतलब अच्छे व्यूज हैं उनके इंस्टाग्राम पे, उनके व्हाट्सएप पे, उनके फेसबुक पे अच्छे व्यूज हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं उनके। तो वो एक्शन फोटो शूट करना, कई जगह वो रेड मारने जाते थे अपनी पूरी पुलिस बल के साथ, तो वो सब पूरा उसका वीडियोग्राफी होता था और फिर वो सोशल मीडिया पे भी डालते थे, अभी भी है। महंगा परफ्यूम यूज करना, ऐसा वो बोलते थे कि मुझे परफ्यूम का बहुत शौक है। और वो जब भी कहीं इंटरनेशनल टूर पे जाते थे तो लौटते वक्त वो सबसे महंगी से महंगी परफ्यूम खरीदते थे एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री शॉप्स पर। महंगी शराब, ब्रांडेड कपड़े, ये उनके शौक थे। रौबदार चेहरा, चेहरे पर गुस्सा और घमंड बराबर रहता था। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। बोलने में बहुत फास्ट थे, कहानी के बिना कोई बात पूरी नहीं करते थे, वो कोई ना कोई कहानी सुनाते थे। देखो, मेरी जब पोस्टिंग वहां थी तो मैंने ये किया, मैं जब वहां पोस्टेड था तो मैंने ये किया, मैं वहां था तो मैंने ये किया। इस तरह से उनकी बातें, और पूरी मतलब एक छोटी सी बात को कहने के लिए वो एक अच्छी स्टोरी सुनाते थे। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया उन्हें जाने। वे अपने सर्विस लाइफ की एक घटना बताते हैं। एक जिले में वे एसएसपी थे और वहां एक घटना घटी थी। घटना क्या थी कि एक ही परिवार के 5 लोग एक साथ सुसाइड कर लिए थे। इनमें 5 और 7 साल के बच्चे भी थे। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, ये करीब 15-20 साल पुरानी बात है। कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने 6 महीने जुनून के साथ लगाकर केस सॉल्व किया। उस समय वो एसएसपी थे। वे कई बार रियलिटी शो में जाने का प्रयास कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने ऑडिशन भी दिया था कई बार, कई सोशल मीडिया पर कई इस तरह की
रियलिटी शोज चलते हैं ना, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ऑडिशन दिया था। हाँ, वे प्रयास में बहुत रहे कि उन्हें कोई भी पार्टी राज्यसभा में भेज दे, लेकिन उनकी किसी से बनती नहीं थी, इसलिए वो राज्यसभा जा नहीं पाए। वे अपने लिए ज्यादा सोचते थे, बाकी लोगों से उन्हें कोई खास मतलब नहीं रहता था। मतलब उनमें एक आई वाला फीलिंग ज्यादा था, मैं। हर समय वे मैं करते थे। उन्हें म्यूजिकल नाइट, कवि सम्मेलन आदि कराने का बहुत शौक था। जहां भी वो प्रशासनिक लीडिंग पोस्ट पे रहे, पद पे रहे, तो वो कुछ कवि सम्मेलन कराना, तो कोई अच्छा सा आर्टिस्ट को बुलवाना, सेलिब्रिटी से उनके अच्छे संबंध थे, तो वो ये सब ऑर्गेनाइज करते रहते थे। करीब 10 वर्षों से वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का इलाज करा रहे थे, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। अपनी बीमारी से बहुत परेशान थे। कहते थे कि मन करता है जिंदगी खत्म कर लूं, लेकिन परिवार की जिम्मेवारियों से बंधा हूं। होम्योपैथी का भी इलाज कराया, लेकिन आराम नहीं मिला। तो ये केस है। आप देखिए कि एक बड़ा अधिकारी है, जो बहुत, उसके अंदर एक अहम भाव है। वो एक अलग किस्म की पर्सनैलिटी है, वो किसी से झुकता नहीं, डरता नहीं। कहता भी है कि मैं क्यों डरूं किसी से, मैं कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ट्रांसफर करवा देगा। बाकी आपने देखा कि वो एक्शन फोटो शूट कराना, महंगा परफ्यूम यूज करना, रौबदार चेहरा, स्मार्ट दिखना, घमंड उनके चेहरे पे बराबर होता था। बहुत फास्ट बातूनी थे, बहुत लंबे लंबे वाक्य यूज करते थे। हाँ? और जो घटना आपको मैंने बताई कि एक परिवार के 5 लोग एक साथ सुसाइड कर लिए थे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, सब उन्होंने प्लानिंग से सुसाइड किया। अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा सिचुएशन है। और उस केस को उन्होंने सॉल्व किया। उनके अंदर एक आई फील था कि मैं हूं, मैंने ही कर लिया। उन्होंने मुझे कहा भी था कि देखो डॉक्टर साहब, मेरी जगह कोई और ऑफिसर होता ना, तो ये कुछ नहीं कर पा, वो उनको कुछ पता ही नहीं चलता। वो मैं ही जानता हूं कि मैंने कैसे इस केस को सॉल्व किया। हेलो, हम लोग हैं। यस सर, यस सर। ओके। तो आप देखिए कि आपके लाइफ में, आपके क्लिनिकल लाइफ में इस तरह के केसेस आते होंगे, लेकिन हम सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स के बेसिस पर ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया को कंसिडर करते, और उसके आधार पर कोई भी दवाई समझ के दे देते। किसी का हो सकता था कि कुछ क्लिक कर जाए, कुछ दवाई कुछ रिजल्ट दे दे, लेकिन ओवरऑल जो होम्योपैथी का फ्लेवर है, जो होम्योपैथी का फील है, जो होम्योपैथी का सोल है, अगर आप उस पैमाने पे देखेंगे, तो जब तक आप टोटालिटी में इस केस को कंक्लूड नहीं कर लेंगे, तब तक आप उसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन या होम्योपैथिक रेमेडी नहीं निकाल पाएंगे, जिसको सिमिलिम हम बोलते हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, रिलीफ के लिए हम कुछ ऐसी दवा तक पहुंच जाएंगे जो थोड़ा बहुत रिलीफ दे देगा, और वही हमको लगता है कि बस होम्योपैथी से जितना हो सकता था यही। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम केस को एनालाइज नहीं करते और प्रॉपर सिमिलियम तक नहीं पहुंचते, तब तक हम क्योर की उम्मीद भी नहीं कर कर सकते। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या क्या रूब्रिक है इसमें? इसमें कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी। एक, आप देखिए कि उनके अंदर एक आइडेंटिटी का इशू तो है, मैं भाव तो है। एक रूब्रिक है डेल्यूजन इन लार्ज ऑब्जेक्ट डिमिनिस्ड एंड लेटर्स आर। उनको कोई चीज बहुत बड़ा दिखता है, मतलब उनके जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, वो बड़े हैं। रूब्रिक डेल्यूजन में है, माइंड सेक्शन में है, इसीलिए आप उसको शाब्दिक रूप से समझेंगे तो नहीं होगा। कई जगह लोग मेटाफर के रूप में इसको देखते हैं और उसमें इन करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं भी मेटाफर के उस तक जाता था, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है कि एक चीज की व्याख्या 10 लोग 10 तरह से करेंगे। मैं होम्योपैथी को साइंस मानता हूँ। आर्ट तो है, लेकिन ये साइंस है, इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डीपर्सनलाइजेशन, अब एक वर्ड है डीपर्सनलाइजेशन। डॉक्टर एम एल सहगल के रेपर्टरी में ये वर्ड है, और ये बहुत
बेहतर तरीके से इसको समझने की जरूरत है। मैंने यहाँ कोशिश की है समझाने की। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स ए persistent or recurring feeling of being detached from one's body or mental processes, like an outside observer of one's life, and a feeling of being detached from one's surroundings. इसको डीपर्सनलाइजेशन बोलते हैं। मतलब व्यक्ति अपने आप को ईश्वर से कम नहीं समझता। व्यक्ति कहता है कि क्या है, आसपास कुछ नहीं है, आप लोग को कुछ नहीं आता, मुझे ही सब कुछ आता। एक्सप्रेस वन सेल्फ डिजायर टू, अपने आप को, वो मैं में है, वो आई में है। तो अपने आप को एक्सप्लेन करना, अपने आप को प्रोजेक्ट करना, अपने आप को बताना, उसके लिए कहानियां बनाना, उसके लिए पूरी, जैसे उसकी लाइफ में कुछ भी इस तरह की घटना, जैसे उसने एक यूनिक केस सॉल्व किया। 5-6 लोग, 6-7 लोगों ने एक साथ सुसाइड किया, तो वो अपने आप में यूनिक है, सेंसिटिव केस है उसको। तो ये एक पर्सनैलिटी। होमोसेक्सुअलिटी, लव विथ वन ऑफ ओन सेक्स। अब यहां पर होमोसेक्सुअलिटी को फिजिकल सेंस में मत दीजिए, वही है डीपर्सनलाइजेशन, एक्सप्रेस वन सेल्फ, वही है होमोसेक्सुअलिटी। लव विथ वन ऑफ ओन सेक्स, खुद से, मेरे सामने और क्या, कौन, मैं ही हूं ना। लोक्वासिटी, बातें करना, बोलना। मॉकिंग, एक्टिंग करना, मॉक करना। मल्टीपल पर्सनैलिटीज डिसऑर्डर और डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डेल्यूजन ऑफ बीइंग मल्टीपल। निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया मीन्स, जानते हैं कि वो, उसको कोई मतलब नहीं कपड़े क्या पहन रहा है, कैसे है, उसके अंदर और भी निम्फोमेनिया का जो फिजिकल मीनिंग है वो, और थोड़ा सा माइंड सेक्शन में है, इसको कंसीडर कीजिएगा तो फिर आप प्रॉपर रूब्रिक तक पहुंचिएगा। सेल्फिशनेस, अपने बारे में बात करना। सेंसिटिव, नॉइज म्यूजिक एम्बुलेट्स, अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना, शोर, कुछ रौनक, चमक दमक। स्टुपिफेक्शन, द कंडीशन ऑफ बीइंग वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड। हैस्टी स्पीच, तेजी से। सुसाइडल डिस्पोजिशन, सस्पिशियस, अनरिलायबल, अनरियल, विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी। ये एक पर्सनालिटी है जिसमें आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी। कोई भी अगर ये कहे कि मैं तो ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं सामान्य आदमी नहीं हूं, मुझे किसी पर्पज से यहाँ भेजा गया है, मैं कुछ, तो उसके अंदर आपको ये सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। वो बोलेगा, अपने आप पर फोकस करेगा, मैं ही मैं हूं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी, और वो ऊपर जो केस है उसमें भी यही चीज। क्या क्या रूब्रिक्स हमने और लिया था? एडॉप्टेबिलिटी, लॉस ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, एवर्सन टू कंपनी, प्रेजेंस ऑफ अदर्स पीपल, वो अलग हट के बैठना चाहेगा, वो भीड़ में नहीं मिलेगा आपको। डेल्यूजन, सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड ही इज, वो अलग, अपने आप को बिल्कुल अलग दुनिया का मानता है, अपने आप को यूनिक मानता है, लगता है कि वो हवा में तैर रहा है। यूफोरिया, who seeks hope while balancing the strains of love, loss and addiction. मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पहले ही बातचीत हुई। कैरिड बाय म्यूजिक, उसको अच्छा लगता है, हाँ, अगर संगीत हो तो वो उसके लिए अच्छी बात है। एक वर्ड है प्रोफाइसिंग। प्रोफेसिंग का मतलब क्या होता है? गहराई तक जानना, सॉल्व करने के लिए वो बिल्कुल गहराई तक जाएगा। क्लेवरेंस, वो छोड़ेगा नहीं। म्यूजिक एम्यूरेट्स, अच्छा लगता है। सेल्फ असर्सन, वांट ऑफ सेल्फ असर्सन, सेल्फिशनेस, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने आप में नहीं है। ये सारे रूब्रिक्स हमने लिए थे।
अब इसको रेपर्टराइज कीजिए तो लगभग वो सारी दवाइयां आपको दिखेंगी। कैनबिस भी है, नक्स मॉस्काटा भी है, नेट्रम्यूर भी है, एलएसडी भी है, सिलिसिया है, नाकार्डियम है, ओपियम है, वेरेट्रम है, लेकेसिस है, एनहोलेनियम है, थूजा है, सारी दवाइयां हैं, हेरोइन है, सेलिक्स है। तो आप देखिए कि एक खास किस्म की दवाइयां और ये सारे रूब्रिक्स आपको दिखेंगे, लेकिन इसमें लीड कर रहा है एनहोलेनियम। और एनहोलेनियम हमने उनको दिया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। ये है एनहोलेनियम। एनहोलेनियम लेविनी एक पौधा है जो नदी के किनारे उगता है, कैक्टस जाति का है। इस पौधे से मैस्कलीन नाम का एक एलिमेंट निकलता है, जिसको आप एक्टिव प्रिंसिपल कह सकते हैं। और मैस्कलीन जो है वो कैंसर मियाज्म की दवा है। कैंसर मियाज्म से जो लोग वाकिफ नहीं हैं वो डॉक्टर संकरन के मियाज्म डिटेल्स को पढ़ें तो समझ में आएगा। सोरा सिफिलिस साइकोसिस से भी आगे अ, संकरन ने करीब 5-6 और मियाज्म का जिक्र किया है। खास करके जो एनहोलेनियम है, अगर आप एमएल सहगल को पढ़ेंगे, परफेक्ट मटेरिया मेडिका ऑफ माइंड, तो उसका सारांश ये है। एनहोलेनियम नाम की दवा या एनहोलेनियम जो पर्सनालिटी है वो कंट्रोल चाहता है, परफेक्शन चाहता है, उसको उम्मीदें होती हैं। वो क्योस वर्ड ये सब आपको वहां मिलेगा। ऑर्डर, क्योस उसको पसंद नहीं है, ऑर्डर में सब चीज चाहता है। वो अपने आप को सुपर ह्यूमन समझता है। बियॉन्ड वंस लिमिटेशन, वो अपनी क्षमता से अधिक। जैसे उन्होंने क्या कहा कि ये केस कोई सॉल्व नहीं कर सकता था, मैं ही हूं जो कर लिया। और आप बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल, वो उनको लगता है। तो ये जो वर्ड है आपको कहीं भी दिखेगा, कंट्रोल, परफेक्शन, एक्सपेक्टेशन, क्योस, ऑर्डर, सुपर ह्यूमन, बियॉन्ड वंस लिमिटेशन, तो आप समझिए कि ये केस इन हॉलेनियम के आसपास का है। फिर आप रूब्रिक्स को लीजिए, रूब्रिक्स के आधार पे कंफर्म कीजिए, कंफर्म करके दवाई दीजिए, रिजल्ट देखिए। फिर आपको लगेगा कि ये एक अलग किस्म की होम्योपैथी हमने की और हमें इसके रिजल्ट मिले। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के एक केस और हमने इनहॉलेनियम से ही देखा था। वो अलग तरीके से प्रेजेंट हुआ, वो एक डॉक्टर का केस था। वो भी कभी हम आपके सामने रखेंगे। अब आइए, कैंसर मियाज्म क्या है। संकरन ने जो कैंसर मियाज्म की बात की, आप इस वीडियो को देखिए। ये जो साइड में एक छोटा सा वीडियो चल रहा है, आप देख रहे हैं, ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की चीजें आपको ह्यूमन लाइफ में मिलेंगी। व्यक्ति ना तमाम तरह की, मतलब देखिए, वो एक छोटे से पतले से रोप पे है और वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कैंसर मियाज्म का कैरेक्टर है। कैंसर मियाज्म का रोगी अपनी परिस्थिति से निपटने के लिए तथा अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता से बाहर जाकर कोशिश करता है। अब देखो कितनी हाइट पे है, गिरेगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये है कैंसर मियाज्म। डॉक्टर शंकरन ने इसको डिफाइन किया है। और इसमें आपको एनहोलेनियम, आर्जेंटम, आर्सेनिक, कैनेबिस, कार्सिनोसिन, इग्निसिया, स्टेप्सिकेरिया कैंसर मियाज्म की दवा है। और इसका बस ये कीवर्ड याद रखिए कि वो अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता से बाहर जाकर कोशिश करता है। ही ट्राई टू, जिसको कहते हैं ना कि जगलिंग करता है, वो लड़ता है, बहुत संघर्ष करता है और संघर्ष करके अपने आप, और उसका संघर्ष सिर्फ अपने आप को अपने इस पे बनाए रखने के लिए है। ये है कैंसर में याद। एनहोलेनियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लें। दोज हु हैव एवरीथिंग एंड वांट्स नथिंग, वो समझता है एनहोलेनियम का पेशेंट कि मेरे पास सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। दैट इज, आर मटेरियली वेल्दी सच दैट मटेरियल थिंग्स आर नो चैलेंज फॉर देम। उसके लिए पैसे वैसे की कोई बड़ी बात नहीं है।
वैसे ही बात करेगा आपसे। दे हैव सीन द बेस्ट ऑफ reality as it exists, and more of the same thing would only be repetition, so they seek the thrill out of an out of the world experience. वो कुछ अलग सपने देखता है, मटेरियल चीजों में उसकी कोई बहुत रुचि नहीं होती। दो मैचिंग इन सम सिम्टम्स, vast differences exist in the original situation from which the state of opium, cannabis, and enholanium arises. ओपियम के माइंड में अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें दिखेगा कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एपोप्लेक्टिक स्टेट, एक्सेलेशन ऑफ माइंड, ड्रीमी, टॉकेटिव, टेंडेंसी टू लाई, ओपियम झूठ बहुत बोलता है, फियर एक्स्ट्रावेगेंस, उसको डर है कि कहीं कुछ बढ़ न जाए, कहीं स्थिति बिगड़ न जाए। आप देखेंगे कि वो पंगे तो लेगा, लेकिन उसको इस बात का डर रहेगा कि यार हमने पंगे तो ले लिए, लेकिन कहीं मामला बिगड़ गया तो कैसे होगा। उसको उसका डर है कि वो उसको संभाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो जो डर है वो एक्स्ट्रावेगेंस का डर है कि कहीं बढ़ गया। दवाई लेने में वो संकोच करेगा कि कहीं डॉक्टर साहब, सुना है कि होम्योपैथी दवाई पहले बीमारी को बढ़ाती है, तो डॉक्टर साहब अगर बीमारी बढ़ गई तो आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो जरा सा भी चूक करेगा तो गिर जाएगा, इसलिए वो एक्स्ट्रावेगेंस से डरता है। कैनबिस में क्या है, लोक्वासिटी, बोलेगा। क्लैरिवोलेंस, चीजों की तह में गहराई में उतरेगा, उसको जब तक वो पूरी अंदर तक जाके पता नहीं कर लेगा वो शांत नहीं बैठेगा। डेल्यूजन, इमेजिनेशन, हेलुसिनेशन कैनबिस में खूब मिलेगा आप। लाफ एंड वीप्स ऑल्टरनेट, दोनों, कभी हंसेगा कभी रोएगा। कैनबिस वैसे भी आप रॉक कैनबिस यूज करके देखिए, आपको सारे सिम्टम्स मिलेंगे। व्हेन ही स्पीक्स इट सीम्स एज दो समवन एल्स इज स्पीकिंग, उसको लगता है कि कोई और बोल रहा, मतलब कुछ अलग तरीके से आवाज आ रही है। एक्सट्रीम साइकिक मोबालिटी, लाफ इमोडरेटली एट सीरियस रिमार्क्स, बहुत गंभीर बातों पे हंसेगा। ये कैनबिस का पिक्यूलियर कैरेक्टर है, जो डॉक्टर सैगल की मेट्रामेटिका में, परफेक्ट मेट्रामेटिका में आपको मिलेगा। लैक्टोफोबिया, पढ़ने से घबराहट, कैनबिस सटाइवा में, कैनबिस इंडिका में ये रूब्रिक्स आपको मिलेंगे। स्ट्रामोनियम को देखिए, स्ट्रामोनियम का माइंड क्या कहता है, एब्यूजिव, कैरिंग मूड विथ एब्यूसिव, डेल्यूजन गॉड ही इज, स्ट्रामोनियम को भी लगता है कि वो भगवान है। डेल्यूजन सीज डेविल्स, वो देखता है, आपको जितने भी गॉडमैन्स हैं, सो कॉल्ड गॉडमैन्स हैं, उनमें स्ट्रामोनियम के लक्षण बहुत दिखेंगे। डेल्यूजन नेकेड ही इज, उसको लगता है कि उसके पास उस सत्य को उसने देखा है, नंगा देखा है, जो है खुली किताब की तरह है। फियर इन डार्क, अंधेरे में डर लगता है। वांट टू रीड ऑल डे, वो कुछ धर्म ग्रंथ, कोई भी गीता, बाइबल यही पढ़ना चाहेगा। सीकिंग फॉर हेल्प, ये शंकरन ने एस्ट्रामोनियम में ऑब्जर्व किया है। एग्रावेट्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, फाटक साहब का रूब्रिक है कि दूसरों के सामने में उसकी तकलीफ बढ़ती है। प्रेइंग नाइट, ये स्ट्रामोनियम है। तो आपने देखा कि कैनेबिस, स्ट्रामोनियम, एनहोलेनियम, ये सब जो दवाइयां, ओपियम, ये सब जो दवाइयां हैं लगभग एक ही तरह के सेड्स की दवाइयां हैं, लेकिन उसमें फर्क है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। एनहोलेनियम के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसे अभी पता चला कि उसे कैंसर है, उसकी हालत जानलेवा है, उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी हिम्मत छोड़ देना उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसलिए वो खुद को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। वह कोई गलती नहीं करना चाहता क्योंकि कोई चांस नहीं है, बचने का कोई उम्मीद नहीं, अगर जरा सा भी चूक होगा तो उसको लगता है कि बस लाइफ गई। इसी को आप परफेक्शनिस्ट के रूप में देख सकते हैं। हाँ, और उसे हर जगह अव्यवस्था दिखाई देती है कि यार कोई ठीक नहीं है, कोई डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं करता, कोई बताता नहीं है, अस्पताल में जाके देखो इतनी गंदगी है,
क्या है, ये कोई जिंदगी है। उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, कंप्लीट चाहिए। और वो एक ऐसे एंड पर है कि वहां से मतलब उसके पास चांस नहीं है। अगर चूक हुआ तो वो गिरेगा और सीधे मौत के मुंह में जाएगा। तो ये इनहोलेनियम का स्टेट है। अगर आपको किसी मरीज में इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे कि डॉक्टर साहब आप कुछ है नहीं, देखिए अब मेरे पास ऐसा अब देखिए मुझे जो पैसे वैसे थे सब हमने खर्च कर दिए, या मेरे पास अब जो जीवन बचा है, जो बीमारी है उसमें आपके पास अगर कुछ कंफर्म दवाई है तो दीजिए, क्योंकि अब बस मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चांस है। बस मान लीजिए कि आपने कोई गलत दवाई दी और मेरा नुकसान हो गया तो फिर मैं बच नहीं पाऊंगा। ये कैंसर मियाज्म का कैरेक्टर है और एनहोलेनियम में आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा। ऐसे अनुभव की आवश्यकता इस भाव से पैदा होती है कि व्यक्ति की कोई जड़ें नहीं होती, उसकी कोई पहचान नहीं होती। उसको ऐसा लगता है कि उसकी कोई पहचान ही नहीं है। वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है, वह दूसरों से अपने आप को अलग कटा हुआ मानता है। ऐसे में वह अपने अहम को, स्वायत्तता को पूर्णतः नश्वर मान लेता है। ऐसे में खुद की पहचान लुप्त होने का उसको भय होता है, और यह भय मौत के भय से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है। मतलब उसको लगता है कि उसकी पहचान अगर नहीं रही, उसका अस्तित्व अगर प्रभावित हुआ, तो फिर क्या बचा। उसके अंदर जो अहम का भाव है वो इतना ज्यादा है। एनहोलेनियम में ऐसा अनुभव जो आसानी से वह व्यक्ति करता है जो खुद से सवाल पूछ सकता है कि मैं कौन हूं। कल्पना कीजिए कोई आपसे, आपका कोई नाम नहीं है और आपको कोई नया नाम रखने की छूट ना हो, तो खुद से पूछ कर देखिए मैं कौन हूं। तब आपको एक खालीपन दिखेगा। आपको लगेगा कि क्या है, मतलब मेरा नाम तक नहीं, मैं कौन हूं, कैसे आप डिफाइन करेंगे। और यह स्थिति बहुत भयानक होती है। मनुष्य दरअसल इसी खालीपन को भरने के लिए एक व्यवस्था बनाता है, और खुद को इसी सहारे अपने नाम, न सिर्फ अपने नाम से बल्कि अपने परिवार, समूह, समाज से जोड़ने की कोशिश करता है। जिस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती, वो कुछ ना कुछ जोड़ेगा। पद्मश्री, पद्म भूषण, या फलाना मोहल्ला के ये तो मैं फलानी कमेटी का चेयरमैन हूं, लाइक दैट। वो कुछ इस तरह से अपने आप को, अपने खालीपन को भरना चाहता है कि उसको मतलब कि वो कुछ और है, वो कुछ अलग है, वो बाकी लोगों से कुछ अलग है। ये इनहोलेनियम की फीलिंग है, ये इनहोलेनियम का माइंड है। इनहोलेनियम एक ऐसी परिस्थिति के लिए है जहां लोगों को संपूर्ण अकेलापन महसूस होता है। उसे लगता है कि क्या है यार, जैसे सब लोग हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं, नया क्या है। तो वो अपनी पहचान की चिंता में रहता है। उसको लगता है कि खुद को किसी परिवार, समूह के बरक्स अगर वो खुद को अलग दिखा सके, हाँ, तो वो अपने चेले बनाएगा, अपने अपने लोगों, अपने कोई समूह को लीड करने की वो कोशिश करेगा। हाँ, कई प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु और शिक्षक ऐसे हैं जिसकी पृष्ठभूमि अकेले और जड़ विहीनता की रही होगी, लेकिन वो धीरे धीरे एक इस तरह की परिस्थिति बनाते हैं कि उनके पीछे एक पूरा फॉलोइंग, एक पूरा फॉलोअर्स का ग्रुप खड़ा हो जाता है। अब चूंकि एनहोलेनियम का जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो मैस्कलीन है, वो जो केमिकल है वो मैस्कलीन है। मैस्कलीन एक तरह का नशा है। जब आप जो जो लोग ड्रग एडिक्टेड हैं, मैस्कलीन के एडिक्टेड हैं, उनमें ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे। हाँ, मैस्कुलिन के, क्रूड मैस्कुलिन के सेवन से यह महसूस होता है कि व्यक्ति अपने इर्द गिर्द के परिवेश के साथ खुद को घुला हुआ महसूस करने लगता है, या फिर कहें कि उसे समूचे अस्तित्व के साथ एकम एक होने का भाव आ जाता है, और उसे सीमाएं नहीं दिखती। वो लगता है कि वो पूरा अखंड ब्रह्मांड उसका है। हिंदू या बौद्ध धर्म में जिसे एकात्मवाद या आत्मा का अद्वैतवाद कहते हैं, उस तर्ज पर उस तर्ज पर यह भाव सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव का भाव होता है, जिसमें व्यक्ति को अपने अमर्त्य होने का अनुभव होता है। जो नष्ट होता है वह देह है, जबकि आत्मा का समूचे अस्तित्व के साथ निरंतर एक रिश्ता है। इसलिए वो अपने आप को शरीर से ऊपर मानता है। ये एनहोलेनियम की फीलिंग है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे,
अगर आप ठीक से रिविजिट करिए अपने पिछले 10 साल की क्लिनिक में, तो आपको दो चार पांच लोग ऐसे मिले होंगे जिसको आपने एनहोलेनियम नहीं दिया होगा। रिजल्ट आया होगा, आपको ओपियम दिया होगा, कैनबिस दिया होगा, स्ट्राम दिया होगा, बहुत सारी दवाइयां हैं, एलएसडी दिया होगा। लेकिन आपको जो एनहोलेनियम का ये जो, जिसको सोल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, सोल ऑफ रेमेडीज जिसको संकरन कहते हैं, वो ये है। एनहोलेनियम कैंसर मियाज्म की दवा है, जहां व्यक्ति को अपना अतिक्रमण करना होता है। उसका कंपटीशन खुद से होता है, वो दूसरे से कंपटीशन नहीं करता, वो अपने आप से कंपटीशन करेगा। कहेगा कि माई कंपटीशन इज विथ मी, मैं हूं, मुझे मेरे से ही कंपटीशन करना है, मतलब हमको उससे भी आगे आना है। वह दुनिया से अलग थलग एक बुलबुले के भीतर लगता है, अपने आप को एक अलग केस बना के रहेगा, और वो अपनी दुनिया अलग बना लेगा। तो ये है एनहोलेनियम। अक्सर मैंने पाया है कि ऐसे लोग नशीली दवाएं लेते हैं। आपने अगर ऋषिकेश में कभी गए होंगे, तो ऋषिकेश में एक बीटल्स आश्रम है। हिप्पियों का एक दौर आया था, दम मारो दम, मिट जाए हम वाला फिल्म आपने देखा होगा। तो उनकी एक अपनी दुनिया है, उनकी अपनी पूरी व्यवस्था है, उनका म्यूजिक अपना है, उनका बैंड था, उनके सारे मेडिटेशन की टेक्निक उन्होंने डेवलप की थी। ये सब एनहोलेनियम के आपको प्रतिनिधि के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। आप गूगल भी करिएगा बीटल्स, तो बीटल्स के बारे में आपको ये सब चीजें मिलेगा। तो ये एक लोग नशीली दवाएं लेते हैं, मैस्केलिन से उन्हें अच्छा अनुभव मिलता है, वे खुश हो जाते हैं मैस्केलिन लेकर। एनहोलेनियम का जो क्रूड फॉर्म है, हाँ, ज्यादातर वो ग्रुप में रहते हैं। बीटल्स ग्रुप में ही रहते थे, वो ग्रुप में ही आए थे, मुश्किल से 21 साल, 2 दशक रहे थे इसमें। महर्षि महेश योगी ने उनको एक तरह से मेडिटेशन सिखाया था। तो अभी, अब तो खैर उसको सरकार तोड़ रही है। लेकिन आपको ऋषिकेश में गंगा के इस तरफ, अगर आप डॉक्टर कांत ने देखा होगा, हम लोग साथ में थे अभी एक कॉन्फ्रेंस में। तो बीटल्स, आपको वो सब एनहोलेनियम के से क्या कहते हैं, नियमित सेवक, सेवन करने वाले लोग थे। हाँ, उनको, तो उनको संगीत पसंद होता है, और वो एक, मतलब वो डोमिनेट करते हैं। वो जहां भी रहेंगे अपनी प्रेजेंस, मतलब वो साइलेंट नहीं बैठेंगे, वो अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, शोर मचाएंगे। हाँ, चाहे वो शोर शोहरत से मचाएं, चाहे वो शोर ऐसे मचाएं, चाहे म्यूजिक से मचाएं, चाहे अपनी एक्टिविटी से मचाएं। ये है इन्होंने। अब आप रूब्रिक अगर थोड़ा सा देखें, तो ये सब सिंगल रूब्रिक है जो आपको डॉक्टर सहगल की किताब में मिलेगा। कंफ्यूजन आइडेंटिटी एज टू हिज depersonalization, loss of self knowledge and self control, disassociation, self identification with environment, disruption, decomposition of shape, space, delusion, immortality, delusion standing by oneself, reality, flight। आप देखिए ये सारे रूब्रिक को एक साथ जोड़िए, एनहोलेनियम आ रहा है। एनहोलेनियम, एलएसडी, फाल्को, सैलिक्स, हेरोइन, कैनेबिस, स्ट्रामोनियम। तो ये सारी दवाइयां आप देख रहे हैं एक अलग किस्म के रूब्रिक्स। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के रूब्रिक्स आपको प्रैक्टिस में नहीं मिलते हैं। हमने एक या दो ले लिया और उसको साइड में रख दिया, हमने कभी इस पे वर्क नहीं किया। ये जो केस था इसके पहले जिसका जिक्र मैंने किया, उस केस को और भी होम्योपैथ के डॉक्टर ने देखा, और अच्छे डॉक्टर ने देखा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े डॉक्टरों ने देखा। अच्छी खासी फीस पे करने के बाद अंत में वो चांस की बात है, मेरे पास केस आया। मैंने अपने सीनियर डॉक्टर की मदद से इस केस को सॉल्व किया। उन्होंने कहा कि आपने क्या क्या इसके सिम्टम्स लिए, मैंने बताया, मैंने उनका पूरा पिक्चर बताया उनको। फिर उन्होंने कहा कि आप इस तरह से सोचो। जब मैंने सोचा, फिर से हमने उनके साथ इंटरेक्ट किया। आप बिलीव कीजिए, इनहोलेनियम देने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, और उनके अंदर बहुत ठहराव आया। वो जो हवा में उड़ते रहते थे, एक इस तरह की बातें करते थे कि मैं नहीं तो और कौन। वो एक गाना था ना, एक वायरल हुआ था। मैं नहीं तो और कौन वाला कोई गाना वायरल हुआ था, शायद कोई रैप वगैरह है, तो वो गाते रहते। उस जमाने में वो गाना था कि नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कहते थे कि
मैं हूं तो मुझसे दुनिया है, ऐसे ऐसे कई गाने गाते थे, वो सुनाते थे। तो ये रूब्रिक। अब कैनबिस इंडिका के बारे में तो हमने मोटा मोटी बातें की, लेकिन आज हम इसी पे फोकस करेंगे, ये कैनबिस को छोड़ दीजिए। तो यस, मैं यहां पर ही इस बात को समाप्त करता हूं। एनहोलेनियम एक दवा जो हमारे मिट्री अमेरिका में बहुत शुरू में है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए कि यदि आपने थोड़ा सा इसको ठीक से पढ़ लिया, अगर सिंपैथी इंस्टीट्यूट इस वीडियो को डालेगा उस पे, यूट्यूब वगैरह पे, आप इसको फिर से रिविजिट कीजिए। आपको लगेगा कि आपकी क्लिनिक में हफ्ते में एक या दो केस तो एनहोलोनियम का जरूर मिलेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस औसतन ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट एनहोल